عبیداللہ ابن زیاد تاریخ اسلام میں بدترین شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ سب خدا کی طرف سے ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کربلا میں لشکر کشی اور کوفے میں اہل بیت آل محمد سے برے سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے، خاص طور پر شیعوں کے نزدیک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے نزدیک منفور ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عبیداللہ ابن زیاد کے بارے میں حیرت انگیز معلومات دیں گے۔ عبیداللہ ابن زیاد بن ابی کی کنیت ابو حفص تھی اور اس کی ماں مرجانہ نامی کنیز تھی، جس نے بعد میں ایک ایرانی فرد شیرویہ کے ساتھ شادی کی۔ عبیداللہ نے اسی کے گھر پرورش پائی، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی زبان بعض عربی الفاظ کی ادائیگی سے قاصر تھی۔ بعض ابن زیاد کو ماں کی نسبت سے طعن کرتے ہوئے ابن مرجانہ کہتے ہیں کہ جو اس کی ناپاک ولادت کی طرف اشارہ ہے۔ بعض ماخذ میں اس عورت کے بدنام اور زناکار ہونے کی تصریح موجود ہے۔ اس کا باپ زیاد بن ابی امویوں کے سرداروں اور حاکموں میں سے تھا، جو اسلامی علاقوں میں تحریکوں کو روکنے میں اپنی کساوت قلبی اور بے رحمی میں مشہور تھا۔ ابن زیاد کے نسب میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور کوئی اس کے باپ کو نہیں جانتا ہے، اسی وجہ سے اسے ابن ابی یعنی اپنے باپ کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ بہت سخت مزاج، بے رحم اور بے باک تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے اسے جبار کے نام سے یاد کیا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اس نے بصرہ میں خوارج کے خروج کے موقع پر عجیب خشونت کا مظاہرہ کیا۔ یہی خصلت غیر مسلموں سے جنگوں میں کامیابیوں کا موجب بنی۔ عبیداللہ کی ساری زندگی کے حکومتی اور سیاسی عہدے کتابوں میں مذکور نہیں ہیں۔ بعض محققین کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ بصرہ اور کوفے کی حاکمیت کا قلمدان اموی حکومت نے اس سے نہیں لیا تھا۔ حضرت معاویہ نے زیاد کے مرنے کے بعد عبیداللہ کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں ایران کے شمال مشرق اور مشرق کی فتوحات میں عبیداللہ کا بنیادی کردار تھا۔ حضرت معاویہ کی جانب سے خراسان کا والی بننے کے بعد اس نے پہلی بار دریائے جیہون عبور کرنے کے بعد بخارا کے رامعین، نصف اور بیگند جیسے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ بخارا کی ملکہ کبج خاتون اور اس کے لشکر کو پسپائی پر مجبور کیا۔ حضرت معاویہ نے 56، 55 یا 57 قمری میں اسے خراسان سے ہٹا کر عبداللہ بن عمرو بن غیلان کی بصرہ کا والی مقرر کیا۔ عبیداللہ نے خوارج کی طرف سے بصرہ میں ہونے والی بغاوتوں کا مقابلہ کیا اور یہ بغاوتیں 58 قمری میں اپنے عروج کو پہنچ گئی تو اس نے انہیں حیران کن طریقے سے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں کچل دیا اور بہت سے خوارج کو قتل کیا۔ سنہ 60 ہجری میں حضرت معاویہ کے مرنے کے بعد یزید چاہتا تھا کہ اسے بصرے سے ہٹا دے، لیکن بصرہ اور کوفے کے خراب سیاسی حالات نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ لیکن قیام امام حسین علیہ السلام کے آغاز اور آپ کی جانب سے مسلم بن عقیل کے کوفہ بھیجے جانے کے بعد یزید نے عبیداللہ اور اس کے والد کی تحریکوں کو تشدد کے ساتھ کچلنے میں شہرت کی بنا پر اسے کوفے کا والی مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں یزید نے اس اقدام کا فیصلہ اپنے مشیروں میں سے سرجون نامی عیسائی مشیر کے مشورے کے بعد کیا۔ کوفیوں نے 60ویں ہجری کے اختتام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی آمادگی کا اعلان کیا اور آپ کے کوفہ آنے کے منتظر تھے کہ عبیداللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے وارد کوفہ ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن وہ جلدی حقیقت امر سے آگاہ ہو گئے۔ امام حسین کے نمائندے مسلم بن عقیل کی تلاش عبیداللہ کا پہلا اقدام تھا۔ عبیداللہ نے کوفے میں آتے ہی لوگوں سے ایک خطاب کیا اور انہیں ڈرانے اور دھمکانے کے بعد کہا کہ جو اس کی پیروی کرے گا اس سے اچھے برتاؤ سے پیش آئے گا۔ تبری کی گزارش کے مطابق عبیداللہ ہانی کے گھر آنے پر مسلم بن عقیل کے چھپائے جانے سے آگاہ ہوا تھا، لہٰذا اس نے واپسی پر ہانی کو دارالعمارہ میں طلب کیا اور اسے زندانی کیا اور جلدی مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے اسے قتل کیا اور اس کا سر یزید کے پاس شام روانہ کیا۔ عبیداللہ نے کوفیوں کو ڈرانے اور لالچ دینے کے بعد حر بن یزید رہائی کو سپاہیوں کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ نیز انہیں حکم دیا کہ حسین کو کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے دے جہاں پانی وغیرہ نہ ہو۔ پھر عمر بن سعد بن ابی وقاص کو لشکر کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی جانب روانہ کیا۔ عمر بن سعد اس وقت رئی کا حاکم مقرر ہو چکا تھا اور رئی جانے کے لیے
तैयार था, लेकिन उबैदुल्लाह ने उसे यजीद की बैत लेने के लिए या जंग करने की जिम्मेदारी सौंपी। उमर बिन साद ने इस काम से माजरत चाही तो उबैदुल्लाह ने रई की हाकिमियत को इसी काम से मशरूत कर दिया। उमर बिन साद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुज़ाकरात के बाद उबैदुल्लाह को लिखा कि हुसैन वापसी का इरादा रखते हैं, लिहाजा उनसे जंग की जरूरत नहीं है। इब्तदाई तौर पर उबैदुल्लाह ये खबर सुनकर खुशहाल हुआ, लेकिन वहाँ पर मौजूद शिमर बिन जिल जोशन ने उसे इस सुलह से मना किया। बस उबैदुल्लाह ने उमर को खत लिखा, अगर हुसैन से बैत ले लो तो उसे कूफे रवाना कर दो, वरना उससे जंग करो, और तुम हुसैन से लड़ने पर राजी नहीं तो लश्कर की सरदारी शिमर के हवाले करो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद खानदान इमाम हुसैन को असीरी की हालत में कूफे लाया गया। अहले बैत पैगंबर को असीरी की हालत में कूफे लाना ऐसे वाकयात में से है जिसे तारीख व हदीस की कुतुब में जिक्र किया गया है। इन वाकयात में से उबैदुल्लाह की हजरत ज़ैनब से गुफ्तगू और आपके दिए जाने वाले जवाबात भी तारीखी और दूसरे मनाबे में मज़कूर हैं। हजरत ज़ैनब और उबैदुल्लाह की बाहमी गुफ्तगू दरबार में मौजूद हाज़रीन पर निहायत असर अंदाज हुई। कूफे में होने वाले दिल खराश वाकयात में से एक वाकया ये है कि उबैदुल्लाह के पास जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पेश हुआ तो उसने अपने हाथ में मौजूद छड़ी के साथ आपके होंठों और दांतों की बेहुरमती की तो दरबार में मौजूद सहाबी रसूल खुदा ज़ैद बिन अरकम ये गुस्ताखी देख कर रोने लगे और कहने लगे, इस छड़ी को इन होंठों से उठा लो, खुदा की कसम मैं कई मर्तबा इन होंठों पर रसूल खुदा को बोसा लेते हुए देखा। उबैदुल्लाह ये सुनकर खशमगीन हुआ और गुस्से से बोला, खुदा तुझे रुलाए, किस चीज पर आंसू बहाते हो? फतह पर आंसू बहाते हो? बाखुदा अगर मैं ये ना जानता होता कि तुम्हारी अकल जायल हो चुकी है तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। ज़ैद ने जब ये सुना तो दरबार से निकल गए। इसके बाद दरबार में मौजूद असीर शुदा अहले बैत में से हजरत ज़ैनब एक कोने में बैठ गई। उबैदुल्लाह ने उनसे 3 दफा पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन उसने जवाब ना पाया। बिल आखिर अहले दरबार में से किसी ने कहा, ज़ैनब बिनते अली बिन तालिब है। इब्न ज़ियाद आपकी इस बेएतनाई से गुस्से में आया और इसने कहा, हमदो सेना है उस परवरदिगार की जिसने तुम्हें रुस्वा किया और तुम्हारे झूठों को आश्कार किया। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, उस खुदा की हमदो सेना है जिसने हमें पैगंबर के साथ तकरीम बख्शी और हमें पाक करार दिया। वो जो गुनहगार है वो रुस्वा होगा और वो जो के बदकार है, झूठ बोलता है, वो हम में से नहीं है। इब्न ज़ियाद आपसे मुखातिब हुआ, देखा खुदा ने बिलखर तुम्हारे साथ क्या किया? हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, हमने खुदा से नेकी और खूबी के अलावा कुछ नहीं देखा। खुदा ने हमारे खानदान के लिए शहादत को मुकद्दर किया था और वो शुजाअत के साथ अपनी कत्लगाह की तरफ आए। खुदा जल्दी उन्हें और तुम्हें एक जगह इकट्ठा करेगा ताकि उसके हजूर तुम्हारा मुहाकमा किया जा सकेगा। तुम उस वक्त देखोगे कि अच्छा अंजाम और आकबत किसकी है। ऐ मरजाना के बेटे, तुम्हारी माँ तेरे आज़ा में बैठे। ये सुनना था कि इब्न ज़ियाद खशमगीन हो गया और कहते हैं कि उसने हज़रत ज़ैनब के कत्ल का इरादा किया, लेकिन उमर बिन हुरैस की वजह से बाज रहा और इसने कहा, ऐ बारे इलाहा, इस सरकश भाई दीगर बागियों और इसके खानदान के हामियों के कत्ल से मेरे दिल को आराम बख्श। हजरत ज़ैनब ने कहा, खुदा की कसम तुमने मेरे भाई को कत्ल किया, मेरी नस्ल को कत्ल किया और हमारी नस्ल को जड़ से उखाड़ा। अगर तुम्हारा दिल इसी से शफा पाता है तो तूने शफा पाई। उबैदुल्लाह मुखातिब हुआ, अपने बाप की मानिद काफिया के साथ और उसकी मानिद मुसज्जा गुफ्तगू करती है। उबैदुल्लाह वाक़े आशूरा के बाद अपनी जालिमाना कुव्वत से इस्तेफादा करते हुए कूफे और बसरा की हुकूमत पर बाकी रहा, लेकिन यजीद के मरने के बाद तजल्जुल का शिकार हो गया। तबरी और अबू अली मस्कविया के मुताबिक यजीद के मरने के बाद इसने एक रात खुतबा दिया जिससे एक रात पहले बसरे के बुजुर्गान को इसने लालच दिया था। इस खुतबे के बाद वो खड़ा हुआ और इसे अपनी हुकूमत के जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन कुछ अरसा बाद लोगों ने इससे मुंह मोड़ लिया और वो अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत के तलबगार हो गए। जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मदीने में कुव्वत हासिल कर ली, जैसा कि शाम के कुछ इलाके भी इसकी खिलाफत में शामिल हो गए, यहाँ तक कि मरवान बिन हकम मदीने में इनकी बैत की गर्ज से आया। इब्न ज़ियाद ने बसम्बिया के मकाम पर इससे मुलाकात की और इसे इस काम से रोका और इसे वादा दिया कि अगर वो खुद मुद्दई खिलाफत हुआ तो वो इसकी हिमायत करेगा। मिरवान वापस चला गया। इब्न ज़ियाद भी दमिश्क रवाना हो गया। उसने वहाँ ज़ुहाक बिन कैस को शहर से बाहर निकाल दिया जो इब्न जुबैर के लिए लोगों से बैत ले रहा था। उबैदुल्लाह ने मरवान के लिए बैत ली। ज़ुहाक बिन कैस ने दमिश्क के नजदीक मरज राहिद के मकाम पर मरवानियों से जंग की
जो इसकी शिकस्त पर खत्म हुई। इस जंग में मरवानियों की सिपा सलारी के फराइज इब्न जियाद के जिम्मे थे। मरवान की हुकूमत के दौरान उबैदुल्ला दिमिश्क में था। खूने इमाम हुसैन के इंतकाम के लिए सुलेमान बिन सुरद खुजाई की सरकर्दगी में तवाबीन ने क़याम किया तो मरवान ने इब्न जियाद को इनके मुकाबले के लिए रवाना किया और इब्न जियाद को गालिब आने की सूरत में इराक की हुकूमत देने का लालच दिया। क़याम तवाबीन 65 कमरी के जमादी उसानी में ऐनुल विरदा के मकाम पर इब्न जियाद और तवाबीन के दरमियान गुमसान कारण पड़ा, जो सुलेमान और उसके साथियों की मौत के साथ इख्तिताम हुआ। इसके बाद इब्न जियाद जजीरा के शहरों को तहत फरमान लाने में मशगूल हो गया कि जहां के लोगों ने पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत की हुई थी। फिर उसने मुख्तार आमिलीन के ताबे मूसल पर हमला किया। मुख्तार के तरफदारों ने तकरियत में अकब नशीनी इख्तियार की और मुख्तार को इस हमले से आगाह किया। मुख्तार ने अपनी सिपा भेजी जिसने इब्न जियाद की भेजी हुई फौज को शिकस्त से दो चार किया। मुख्तार के लश्कर की कामयाबी के जवाब में इब्न जियाद खुद फौज के हमरा उनकी तरफ आया। मुख्तार बुनियादी तौर पर इब्न जियाद और करबला की जंग में हिस्सा लेने वालों को हलाक करने के दर पे था। उसने इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर को इब्न जियाद के सिपाहियों से मुकाबले के लिए रवाना किया। इब्राहिम इब्न जायद से पहले इराक की सरजमीन पर पहुंचने का इरादा रखता था, लिहाजा वो दरियाए खाजिर के साहिल के नजदीक मूसल से 5 फरसा के फासले पर बार बीसा नामी देहात में लश्कर शाम को जा पहुंचा। इराकियों और शामियों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। इब्न जियाद ने शिकस्त खाई, वो अपने साथियों समेत यहाँ कत्ल हो गया। अबू मुखनिफ की रिवायत के मुताबिक इब्राहिम इब्न अश्तर ने तन बे तन लड़ाई में उसे कत्ल किया। अमारा बिन उमैर कहते हैं कि जब उबैदुल्ला बिन जियाद और उसके साथियों के सर लाए गए और कूफा की एक मस्जिद में उन्हें तरतीब से रख दिया गया और मैं वहां पहुंचा तो लोग ये कह रहे थे, आया आया, तो क्या देखता हूं कि एक सांप सिरों के बीच से होकर आया और उबैदुल्ला बिन जियाद के दोनों नथनों में दाखिल हो गया और थोड़ी देर उसमें रहा, फिर निकल कर चला गया, यहाँ तक के गायब हो गया। फिर लोग कहने लगे, आया आया। इस तरह 2 या 3 बार हुआ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। उबैदुल्ला इब्न जियाद की हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ इकदाम करने और वाक़े आशूरा की जंग को बर्पा करने की वजह से वो शुरू से ही मुसलमानों की निगाहों में मनफूर और बदनाम हो गया। खास तौर पर कूफे के मुसलमान उससे बहुत ज्यादा नाराज थे। जैसा कि तारीख की नकल के मुताबिक अब्दुल्ला बिन अफीफ अजदी का वाक़या करबला के बाद इब्न जियाद के पहले खुतबे के दरमियान उसने इब्न जियाद और यजीद को बुरा भला कहा। यहाँ तक के कहते हैं कि उसकी माँ मरजाना ने उसे बहुत नासजा कहा। शियों के नजदीक उबैदुल्ला इब्न जियाद सदियों से तारीख इस्लाम की मनफूर तरीन शख्सियात में से समझा जाता है। चंद मशहूर जियारत नामों में इसका नाम जिक्र हुआ जिनमें इसे लानत का हकदार ठहराया गया है।